Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 36th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we start another new chapter and the last chapter of the MSM as per the GTU syllabus, which is the allotropy of ions, right? And yesterday we try to understand basic things about uh, the how the ion which is react during the any kind of the metallurgical process and the basic things about the ion. Now we also try to understand the basic things about the IC diagram, which is the ion carbon diagram, right? How the how can we get the informations with the IC diagram? What is the usefulness of the IC diagrams? So we try to understand the basic things about the IC diagrams. I think you all are aware with this content. So we can proceed with that points, and we can move forward these lectures to the up to the today's end. So in the yesterday's lecture, we I also explained the basic things about the iron diagrams, and I also show that. So today also you can see that on your screen, right? You can observe the IC diagrams on your screens, and we try to understand basic things about the IC diagram. The IC diagram which is plot against the plot with the two variables, which is the time, which is the temperatures and the percentage of the carbons, right? We can also discuss that the percentage of the carbon which is restricted to the 2%, that which is known as a steel, and if the percentage of the carbon which is exists to the more than 2% up to the 6.7%, which is that metal which is designated as a cast iron. Now the steel which is also further classified, which is the eutectoid steels and eutectic steels, with the percentage of the carbon. And as we can increase the temperature, the various kind of the phases are developed in the uh, various kind of the heating and the cooling process. You can see that the austenite, ferrite, pearlite, cementite, ladybirite, these are the various kind of the structure which is developed during the iron carbon diagram. So we also try to discuss that basic structures about the iron carbon diagram. So this is the outline of our lectures, which will we discuss in the previous content. So this is also the cooling curve. We also discussed about the cooling state when we try to cool the liquid from the liquid state to the solid state, the how the phases and how the crystal structures are the changes, right? First it will the delta ferrite, then delta ferrite which is converted to the gamma ions, right? Gamma ion with the abscissa structures, and further it is changed with the gamma ions to the alpha ions, and the crystal structure which is also changed, which is BCC, right? And at the last it will remain below the lower critical temperature, which is the 723 degrees Celsius, which is the alpha ion with the BCC structures. So there are the various kind of the structure which is formed during the IC diagrams or the iron carbon equilibrium diagram, which is the austenite, ferrite, pearlite, cementite, martensite, ladybirite. These are the various structure which is formed during the IC diagram. So we can try to discuss all these things on these lectures. So in the previous series of the lecture, these are the different kind of the microstructures we can observe that in the previous last lecture. So we can move forwards these lectures, or we can move forward the microstructures with the detailed crystal structure, right? As we can increase as we can the microstructure which is developed with the effect of the temperatures and the percentage of the carbon. If your percentage of the carbon which is increase in your structures, right, when you get the samples from that areas or that regions at the that temperature range, you can get the definitely the higher percentage of the carbons at the higher temperatures, right? And based on that, that kind of the graphite or the carbon effects are showing in the microstructures. So we start with the structure which is the first, which is the ferrite which is known as a
alpha solid solutions. It is the interstitial solid solutions of a small amount of the carbon which is dissolves in the alpha BCC ions. जो फेराइट है वो बेसिकली एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस है जिसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है जो कार्बन रहता है। फेराइट ऐसा स्ट्रक्चर है जैसा हमने प्रीवियस सेक्शंस के अंदर देखा था कि आप देख सकते हैं जो बी वाला जो इमेज है जो मैं अभी आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपको लेस परसेंटेज ऑफ द है जो ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो ब्लैक लाइन के साथ दिख रही है, राइट। सो विच इज इंडिकेट दैट द फेराइट परसेंटेज विच इज़ क्वाइट लो and which is the interstitial solid solutions which is stables at the ion which is below the 912 degree Celsius. The maximum solubility is 0.025 percentage of the carbon at the 723 degree Celsius and it is dissolved only 0.008 percentage of carbons at the room temperature. सो यानी ये जो है ना बेसिक फेराइट जो है विच इज़ द बेसिक सॉफ्टेस्ट स्ट्रक्चर विच इज अपियर्स इन दी आईसी डायग्राम। ये जो है पूरी डायग्राम में पूरी प्रोसेसिंग डायग्राम में जो है वो जो सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप्ड होता है, ये सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर है विद द लेस परसेंटेज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ दी। यानी आप देख लीजिए कि बेसिक उसका रिलेशनशिप यहाँ भी डेवलप्ड ये होता है इफ़ द परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज़ इंक्रीज द मेटल विच इज़ बिकम एज ए हार्डर, राइट। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन विच इज़ डिजोल्व, यहाँ पे जो है एक स्मॉल अमाउंट परसेंटेज में कार्बन जो है वो डिजोल्व होता है यहाँ पे, राइट। सो इसीलिए तो अभी जो स्ट्रक्चर आपका फेरेट मिलेगा वो काफ़ी फेरेटिक स्टील जो होगा वो काफ़ी नेचर के अंदर सॉफ्ट होगा, right? So this is the relationship between the ferrites and the carbons. So average properties of the ferrite which is the tensile strength which is approximately 14,000 psi, while the elongation which is the 40% elongations in the 2 inches and the hardness which is the Rockwell hardness which is the Brinell in the form of the 90s. सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर दिखेगा पैराइट के अंदर जो है वो आपको एक जो है वो थोड़े ब्लैक स्ट्राइक्स जो है वो आपके फेरेटिक पैराइट स्ट्रक्चर के अंदर आप अगर माइक्रोस्कोप में स्टील को ऑब्जर्व करेंगे और आपको ऐसे जो है वो ग्रेफाइट स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, राइट, देन यू कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर हैज़ ए heaviest presence of the ferrite structures. So perlite is the eutectoid mixtures which is containing, यहाँ पे जो है वो eutectoid mixtures हैं, राइट। अब eutectoid किस में बोला जाता है, which is containing the 0.80% of the carbon, जिसके अंदर जो है वो 0.80% of the carbon जो है वो यहाँ पे प्रेजेंस है, 0.80% of the carbon यहाँ पे प्रेजेंस है, इसलिए आपको यहाँ पे जो है वो ब्लैक स्ट्राइप्स जो है वो दिख रही है and is forms at 723 डिग्री सेल्सियस ऑन अ वेरी स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग के ऊपर जो है ये आपको 700 यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर जो है वो यूटेक्टोइड रेंज में आपको ये परलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो सकता है। इट इज़ अ वेरी फाइन प्लेट्स लाइक्स और ए लैमिलर मिक्सचर्स ऑफ द फेराइट्स एंड द सीमेंटाइट। ये परलाइट जो है वो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो लैमिलर मिक्सचर्स हैं, किसका, तो कि फेराइट और सीमेंटाइट का। फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होके जो है ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है जिसको हम लोग परलाइट बोलते हैं। द वाइट फेरेटिक बैकग्राउंड्स और मैट्रिक्स विच इज कंटेन्स अ थीन प्लेट्स ऑफ द सीमेंटाइट डार्क, यानी वाइट जो बैकग्राउंड्स है आपको वो दिख रहा है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेरेटिक इमेज, राइट। फेरेटिक स्ट्रक्चर्स जो वाइट आपको बैकग्राउंड्स के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फेरेट की वजह से है, और जो आपको ब्लैक प्लेट स्ट्रिप्स दिख रही है विच इज़ द सीमेंटेड विच इज़ ड्यू टू द सीमेंटेड प्रेजेंस इन द कलर्स ऑफ द डार्क। सो दिस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ए पेराइट स्ट्रक्चर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहते हैं विच इज़ द 1,20,000 psi, द एलोंगेशन विच इज़ लिटिल बिट लो विच इज़ द 20% in the 2 inches, and the hardness, the Rockwell hardness C which is the 20, Brinell which is the 95 to the hundreds, and the Brinell hardness which is the 250 to 30 BHN,
which is the Brinell hardness number. Now the third the third structure of the steel, which is the austenite, right? Austenite जो है वो क्या है? The austenite is an interstitial solid solutions of the carbon which is dissolves in the, अब यहाँ पे आपका जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है. ऑस्टेनाइट थोड़ा आपको ऊपर मिलेगा जिसका अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, विच इज़ द गामा, विच इज़ द गामा आयन. और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है विच इज़ दी, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है विच इज़ दी एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. द ऑस्टेनाइट इज एन interstitial solid solutions of the carbon which is dissolves in gamma FCC ion. The maximum solubility is 2% of carbon at 1130 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम कार्बन की सॉलिबिलिटी रहती है वो 2% तक इसकी रहती है. और कितने टेम्परेचर तक? तो कि वो 1130 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इतनी इसकी सॉलिबिलिटी 2% कार्बन जो है उसमें सॉल्यू हो सकता है. दिस ऑस्टेनाइट हैज़ ए हाई फॉर्मेबिलिटीज़, उसको आप इजीली उसको फॉर्म कर सकते हो. द मोस्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट इज बिगिन्स विद दिस सिंगल फेज. यानी आप किसी भी स्टील को हीट ट्रीटमेंट करोगे तो इस सिंगल फेज से जो है वो ये स्टार्ट होता है. इट इज़ नॉर्मली नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर. ये जो है वो बेसिकली रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्टेबल नहीं रह सकता. बट अंडर सर्टेन कंडीशंस इट इज़ पॉसिबल to obtain austenite at room temperature, but it is possible to stable at the room temperatures. So the austenite has a properties which is the tensile strength which has a 1,50,000 psi, the elongation which is 10%, into which is hardness which is the Rockwell hardness which is the 40 approximately, and the toughness which is very high. ये जो है वो हायर टफ मटेरियल है. नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ दैट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगर हमारे पास अब नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज़ दी सीमेंटाइट. अब सीमेंटाइट कैसा स्ट्रक्चर है? द सीमेंटाइट और द आयन कार्बाइड, राइट? इसके अंदर कार्बाइड फॉर्मेशंस है, इसके लिए हमको आयन कार्बाइड भी बोल सकते हैं. इज़ वेरी हार्ड. ये जो है वो सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है स्टील का. एंड ब्रिटाइल इंटरमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ आयन एंड कार्बन. इसके अंदर जो है वो एक तरीके से इंटरमेटलिक कंपाउंड्स जो है वो डेवलप्ड होता है जो आयन और कार्बन की वजह से डेवलप्ड होते हैं. अब ये जो इंटरमेटलिक कंपाउंड्स है वो क्या बना देते हैं? तो मेटल जो है ना उसको ब्रिटल बना देते हैं. जब भी आप इसके ऊपर कोई सर्टेन लेवल ऑफ द फोर्स अप्लाई कर सकते हो तो ये जो है वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा. वैसे हार्ड है पर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो ब्रेक होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं. सो दिस इज दी this is happens due to the intermetallic compounds in the metals. So the iron carbide which is contains the 6.67% of the carbon. यानी ये हार्ड होने के पीछे आप यहाँ पे और रिलेशंस को देखिए. ये सबसे हार्ड है, इसकी वजह क्या हो सकती है? यानी कि इसका जो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है उसमें हो सकता है वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है यहाँ पे हो सकता है. और यहाँ पे दिख भी रहा है कि 6.67% ऑफ कार्बन जो है वो यहाँ पे सीमेंटाइट में प्रेजेंस है. इट इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर. ये जो है वो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं. दैट इज अपीयर्स ऑन द डायग्राम. एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ द अननोन. ये किस मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो पूरा मेल्ट हो जाता है ये अभी तक पता नहीं चला है. इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इतनी ऑर्थोहोम्बिक. इसके अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे एफसीसी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एचसीपी हो सकता है. ऐसे ही हमने जो स्ट्रक्चर्स हमने बाइनरी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसमें एक ऑर्थोहोम्बिक स्ट्रक्चर्स था. इस ऐसा स्ट्रक्चर जो है हमें सीमेंटेड के अंदर देखा जा सकता है. इट हैज़ ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 5000 psi. इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी लो है विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 5000 psi. बट द हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो ज़्यादा जो है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा है. सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टील विच इज़ दी लेडिब्यूराइट. अब लेडिब्यूराइट क्या है? तो लेडिब्यूराइट इज़ ए यूटेक्टिक मिक्सचर्स ऑफ द ऑस्टेनाइट एंड द सीमेंटाइट. ये जो है
लेडिब्यूराइट, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट, ये दो चीज़ का जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं, विच हैज़ अ 4.3% ऑफ द कार्बन, यानी ये भी एक तरीके से 4.3% ऑफ कार्बन है, तो ये काफ़ी तरीके से ये हार्ड हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, एट विच इज फॉर्म्स एट द 1130 डिग्री, ये यानी ऑस्टेनेट के आसपास वाले टेम्परेचर पे ये जो है वो हमें मिल रहा है. So next, which is the martensites. So the martensite is a supersaturated solutions of carbon in the ferrite. martensite जो है वो एक तरीके से सुपर सेचुरेटेड फॉर्म ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस है जो कार्बन की वजह से हमें मिल रहा है वो फेरेट में बेसिकली में. इट इज़ फॉर्म्स व्हेन द स्टील इज कूल्ड. वो कब फॉर्म होता है, जब जो स्टील जो है वो ठंडा होता है. सो rapidly that change from the austenites to perlite is suppressed, right? So it is formed when the steel is cooled so rapidly, जब स्टील जो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी जो है ठंडा होता है, that change from austenite to perlite, तब जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे होता है, तो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो austenite to perlite में चेंजेस होता है, which is as suppressed. The interstitial carbon atoms distorts the BCC ferrites into the BCC tetragonal structures, which is the BTC, and responsible for the hardness of the quenched steel. So iron carbide diagram, a map of the temperature at which, यहाँ तक जो हमने पढ़े वो जो स्ट्रक्चर आईसी डायग्राम के अंदर हमें स्टील या फिर कास्ट आयरन के अंदर मिल रहे थे, वो स्ट्रक्चर्स उसके क्या बिहेवियर हो सकते हैं वो हमने पढ़े. अब बेसिकली हम लोग जा रहे हैं आयन कार्बन डायग्राम के ऊपर. ए मैप ऑफ द टेम्परेचर एट विच द डिफरेंट फेजेस इज चेंज अकर, जिस एक मैप है जिसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फेजेस चेंजेस जो हमें मिल रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं ऑन अ वेरी स्लो हीटिंग के ऊपर, एंड द कूलिंग रिलेशंस टू द कार्बन्स, हीटिंग और कूलिंग के रिलेशंस के साथ कार्बन के रिलेशन के साथ, हीटिंग हो सकता है या फिर कूलिंग हो सकता है, उसका रिलेशनशिप जो कार्बन के साथ डेवलप्ड होता है. अब वो जो ऐसे रिलेशनशिप से जो है वो टेम्परेचर की इफ़ेक्ट के साथ जो फेजेस डेवलप्ड हो रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशंस जो एक मैप या फिर एक ग्राफ में हुआ है उसको जो है वो आईसी डायग्राम जो है बोला जा सकता है. आईसी डायग्राम इज शोज दैट द टाइप ऑफ द एलॉइड विच इज फॉर्म्स अंडर अ स्लो कूलिंग. आईसी डायग्राम से हमें क्या मिल सकता है, जो टाइप्स ऑफ एलॉइज जो है वो फॉर्म्स हो रही है एट अंडर अ वेरी स्लो कूलिंग, जो स्लो कूलिंग के ऊपर जो है वो एक तरीके से एलॉइज जो है वो फॉर्म्स हो रही है, वो हमें पता चल सकता है. द प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट और द हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर जो है वो हमें आईसी डायग्राम से पता चल सकता है, किस टाइप के स्टील को किस तरीके से किस टेम्परेचर रेंज तक जो है वो हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील्स एंड द कास्ट आयरन्स कैन बी रैपिडली चेंज्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट. किस तरीके से स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती है, विच इज़ ओनली ड्यू टू द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. ये चीज़ जो है वो हमें आयन कार्बन डायग्राम से पता चल सकती है. सो दिस इज द वेरियस फीचर्स ऑफ द आयन कार्बन डायग्राम्स. सो दिस आर द रिएक्शंस विच इज द पेरिटेक्टिक रिएक्टर वेयर द लिक्विड प्लस डेल्टा आयन is combines and we can get the gamma ion, where in the eutectic reactions where the eutectic liquid is achieved with the gamma ion plus the carbide formations, which is the ion carbide formations. Then in eutectoid gamma ion where the alpha ferrite plus the ion carbide formations which is developed the eutectoid gamma ferrite, where the phases which is presents in the IC diagram which is the liquid phases which is the ये चीज़ हमने अभी जो है वो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा के अंदर जो है वो BCC स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगा, वो पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स होगा. देन अल्फा फेराइट के अंदर BCC स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, वो फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरली डक्टाइल स्ट्रक्चर होगा. देन गामा फेराइट्स के अंदर जो है वो ऑस्टेनाइट
एप्सिस स्ट्रक्चर के साथ जो बेसिकली नॉन मैग्नेटिक और डक्टाइल हो सकता है, और जो आयन कार्बाइड सीमेंटाइट जो है वो ऑर्थोहम्बिक स्ट्रक्चर के साथ एक हार्ड और ब्रिटल फॉर्म के साथ वो डेवलप्ड होता है। इसकी जो मैक्सिमम सॉलिबिलिटीज इन द कार्बन जो है इन द फेराइट जो है वो जो लोवेस्ट है, विच इज़ द 0.0022% ऑफ दैट, and the maximum solubility of the carbon in austenite which is the 2.11%। जो मैक्सिमम जो कार्बन है वो ऑस्टेनाइट में सॉल्युबल है, और मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी जो फेराइट के अंदर जो है कार्बन की है वो 0.022%। There is a three reactions are developed in the IC diagram which is the peritectic reactions। अब peritectic reactions किसको बोला जाता है? तो peritectic reactions जो है वो 1490 डिग्री सेल्सियस यानी 1490 डिग्री सेल्सियस के ऊपर with a low weightage और the percentage of the carbon alloys, ये 1490 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लो परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ एलॉयज के साथ डेवलप्ड होता है। ऑलमोस्ट देयर इज अ नो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इस टाइप के स्टील या फिर कास्ट आयरन का कोई इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस नहीं होता है। देन द सेकेंड रिएक्शंस विच इज़ द यूटेक्टिक रिएक्शंस विच इज़ डेवलप्ड एट 1130 यानी 1130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेवलप्ड होता है, जिसके अंदर द परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज़ द 4.3% ऑफ द कार्बन alloys which is called as a cast iron। अब उस चीज़ को जो है वो कास्ट आयन जो है वह बोला जा सकता है। देन यूटेक्टोइड, अब यूटेक्टोइड को आपको पहले ही मैंने डिस्कस किया था। यूटेक्टोइड के अंदर दो हो सकते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड और हाइपो यूटेक्टोइड, विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन एट the 723 degrees Celsius with the eutectoid compositions or the 0.8% of the carbon। There is the two phases of the mixture which is the ferrite and cemented। यहाँ पे जो है वो 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो यूटेक्टोइड कंपोजिशन 0.8% के साथ जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, जो दो फेजेस के साथ डेवलप्ड हो रहा है। उसके अंदर जो है यहाँ पे आपका दो फेजेस मिल सकते हैं विच इज़ द फेराइट एंड सीमेंटाइट। वो जो है एक जो है वो सॉफ्टेस्ट काइंड ऑफ द स्टील है, एक जो है वो हार्डेस्ट काइंड ऑफ द स्टील है, और विच इज़ नोन एज दे आर द काइंड ऑफ द स्टील्स, राइट। हाउ टू रीड द आयन कार्बन डायग्राम। अब मैंने यहाँ पे आपको आयन कार्बन डायग्राम तो पहले ही आपको बताया था, अब उसको रीड कैसे किया जा सकता है वो हमें आगे इसको देखना है। सो द आयन कार्बन डायग्राम shows the three horizontal lines। आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर तीन जो है वो आपको horizontal line जो ये यहाँ पे दिख रही है, right, which is indicate the isothermal reactions on cooling and heating। ये जो तीन horizontal line जो है वो isothermal reactions जो है वो हमें यहाँ पे दिखाती है। वो हीटिंग के हो सकते हैं या फिर कूलिंग के हो सकते हैं। द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस विच इज़ एट दी 1490 डिग्री सेल्सियस, ये जो आपको पहला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको दिखेगा 1490 डिग्री, यानी आप फ़ारेनहीट में देख रहे हैं तो फ़ारेनहीट में आप देख लीजिए कि फ़ारेनहीट होगा जो 2800 फ़ारेनहीट, और इसी लाइन को आप हॉरिजॉन्टली इसको प्लॉट कर दे तो ये जो लाइन है वो 1490 यानी 1500 के आसपास यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वो डेवलप्ड होगा, राइट। तो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज़ एट दी 1490 डिग्री सेल्सियस वेयर द पेरिटेक्टिक रिएक्शन विच इज टेक प्लेस विच इज़ द लिक्विड प्लस डेल्टा स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिक्विड प्लस डेल्टा स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड होता है, और वो जो है यहाँ पे आपका डेल्टा फेराइट, यहाँ पे लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइट होता है, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है दैट इज़ द ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर, और ऑस्टेनाइटिक स्टील जो है वो डेवलप्ड होता है। द सेकेंड रिएक्शंस विच इज़ एट दी सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपको दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज़ यू कैन अप्रोक्सीमेटली शोज दैट द 1130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको दिख रही है विच इज़ द यूटेक्टिक रिएक्शंस विच इज़ टेक प्लेस। यहाँ पे जो है वो यूटेक्टिक रिएक्शंस जो है वो डेवलप्ड होता है, और वहाँ पे जो बेसिकली जो स्टेट ऑफ मेटल होता है विच इज़ द लिक्विड, और वहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे डेवलप्ड वहाँ पे हो रहा है विच इज़ द ऑस्टेनाइट एंड द सेकेंड विच इज़ द सीमेंटाइट।
सो यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा स्टील या फिर कास्ट आयरन का, वो ऑस्टेनाइट हो सकता है, एक जो है वो सीमेंटाइट हो सकता है। एंड द थर्ड रिएक्शंस और द थर्ड लाइन, यानी ये जो 723 डिग्री के ऊपर आपको दिख रही है, विच इज़ दी डेवलप्ड एट दी 723 डिग्री सेल्सियस, वेर द यूटेक्टोइड रिएक्शन विच इज take place where you can got the structure which is the austenite, which, or you can also find the perlite, which is the mixtures of the ferrites and the cementites. So this is the delta region of the iron carbide diagram. यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो जो है वो एक डेल्टा रीजन है, जो आपको 1423 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या फिर 1490 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो डेवलप्ड हो रहा है। वो मैंने आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम परसेंटेज ऑफ कार्बन के फॉर्म्स में यहाँ पे आपको प्लॉट किया हुआ है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज़ द लिक्विड प्लस जो है वो ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगा। यानी बेसिक यहाँ पे जो आपको स्टील आपको मिलेगा वो डेल्टा आयन है, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टील होगा। देन आप उसको फर्दर विच इज़ यूक्वल द फेराइट रीजन ऑफ द आयन कार्बाइड डायग्राम। तो जो यहाँ पे आपको 723 डिग्री के सेल्सियस के नीचे आपको जो अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, जो आपकी 0.08% तक जो कार्बन रेंज है, वहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो आपको मिलेगा फेराइट प्लस परलाइट। वहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा उस स्टील का, वो उसको हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जो है वो बोला जा सकता है, और उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका रहेगा फेराइट प्लस परलाइट। अब उसी टेम्परेचर उसी कार्बन परसेंटेज के साथ हम लोग यूटेक्टिक रिएक्शंस की अगर बात करें तो यूटेक्टोइड रिएक्शंस की अगर बात करें तो वहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज़ द ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट्स, एंड above the 910 degrees Celsius, which is the upper critical temperature limit, where the structure of that kind of the steel, which is the austenitic structures. You can see that the different kind of the structure which is developed at with the different percentage of the carbons and with the different temperature range. The austenites to the ferrite or cementite transformations in the reactions to the iron carbon diagram. In order to understand the ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, अगर हमें जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो हमें समझनी है, तो कंसिडर दैट अ स्टील ऑफ द यूटेक्टोइड कंपोजिशन, हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा स्टील जो है उसका बेसिक कंपोजिशंस जो अभी यूटेक्टोइड कंपोजिशंस है, यानी इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है विच इज़ द 0.8% ऑफ द कार्बन्स, एंड यहाँ पे उसका जो स्लो कूलिंग जो है वो यहाँ पे हो रहा है। एट द अपर टेम्परेचर्स ओनली द ऑस्टेनाइट इज प्रेजेंट, यानी मैंने आपको अभी जो बताया कि अपर टेम्परेचर यानी अपर क्रिटिकल लाइन के ऊपर, यानी 910 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो यहाँ पे टेम्परेचर जो प्रेजेंस है उसके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर मिलेगा वो सिर्फ ऑस्टेनाइट्स होगा विद द परसेंटेज ऑफ द 0.8% ऑफ कार्बन्स, राइट, बीइंग विच इज डिजॉल्व्स इन अ सॉलिड सॉल्यूशंस विद द एफसीसी स्ट्रक्चर, और वहाँ पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा वो एफसीसी रहेगा। व्हेन द स्टील इज कूल थ्रू द 923 degrees Celsius, the several changes is to be occurs from austenite to ferrite plus perlite or the cementite transformations. The austenites to ferrite and cementite transformations in relationships to the iron carbon diagram. The iron which is wants to change the crystal structure from FCC austenites to the BCC ferrites, but the ferrite can only contain the 0.02% of the carbon in the solid solution. So the excess of the carbon which is rejected, and form the iron rich intermetallic which is known as a cementite. वहाँ पे दो सेपरेट चेंज हो रही है। जो फेराइट है वो तभी हो सकता है जिसके अंदर द परसेंटेज, वो इसका लिमिटेशन यही है कि 0.02% कार्बन के साथ ही फेराइट फॉर्म होता है। अब जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द कार्बन है वहाँ पे एक इंटरमेटलिक के फॉर्म के तौर पे जो है वो एक और एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है विच इज़ नोन एज ए सीमेंटाइट। सो दिस इज द परलाइट लाइक द परलिटिक स्ट्रक्चर। द नेट रिएक्शंस एट द यूटेक्टोइड
इज द फॉर्मेशंस ऑफ द परलाइट स्ट्रक्चर। मैंने आपको यही बताया था, पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि द वाइट बैकग्राउंड विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेराइट, जो परलाइट है वो डेवलप्ड हो रहा है due to the presence of the ferrite plus the cementite, since the chemical separation which is occur entirely within the crystalline solids, the resultant structure is a fine mixtures of ferrites and the cementite। यही चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी। इसके साथ जो है इसका न्यूक्लिएशंस एंड द ग्रोथ जो है वो कैसे जो है वो ऑस्टेनाइट से धीरे धीरे जो है वो फेरलाइट्स और उसके अंदर जो है वो परलाइट वाले जो मार्क्स है वो डेवलप्ड हो रहे हैं, स्ट्राइप्स जो है विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेफाइट्स यहाँ पे डेवलप्ड हो रहे हैं। नाउ द ऑस्टेनाइट्स टू द फेराइट एंड द सीमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशंस इन रिलेशनशिप। A hyper-eutectoid steel, a steel which is having a less than 0.8% of the carbon, which is called as a hypo-eutectoid steel, and hypo means less than. Consider the cooling of the a typical hypo-eutectoid। मैंने आपको यही चीज़ बताया था कि 0.8 के नीचे वाला जो है कम वाला जो परसेंटेज है विच इज़ द hypo-eutectoid steel, और जैसे ही 0.8 से परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए देन विच इज़ द hyper-eutectoid steel। At a high temperature the material is entirely austenitic. Upon the cooling it enters a region where a stable phases are the ferrite and the austenites. The low carbon ferrite nucleates and the grows which is leaving the remaining austenite which is the riches in the carbons. The hyper-eutectoid steel at the 723 degrees Celsius, the remaining austenite will be assumes the eutected compositions which is the 0.8% of the carbons, and the further cooling transforms into the perlites. The resulting structure is the mixtures of the primary, the pro-eutectoid ferrites which is the ferrites which is form the eutectoid reactions, and the region which is the perlites. Now the hyper-eutectoid steel। अब हाइपर का मैंने यही चीज़ आपको पहले ही अभी बताई कि हाइपर जिसके अंदर ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, विच इज़ द मोर देन 8% आर धोज कंटेन्स मोर देन द यूटेक्टोइड अमाउंट ऑफ द कार्बन, यानी 0.8 से अगर ज़्यादा है तो फिर उस चीज़ को जो है वो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जो है वो बोला जा सकता है। व्हेन सच अ स्टील इज कूल, जब वो ठंडा हो जाएगा, एज along the line XZZ, the process is similar to the hyper-eutectoid steel, except that the primary or a pro-eutectoid phase is now cementite instead of the ferrites. As the carbon which is rich phase nucleates and grow, the remaining austenite is decreased in the carbon content and again reaching to the eutectoid compositions at the 723 degree Celsius. This austenite transformations to the perlite upon a slow cooling through a eutectic temperature, the resulting structure consists of a primary cementites and the perlite. The continuous network of the primary cementite will cause the material is to be extremely brittle। यहाँ पे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो हाइपोयूटेक्टोइड के अंदर जो है वो स्लो कूलिंग के साथ जो है वो डेवलप्ड होता है। देन द कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन की अगर बात करें तो कास्ट आयरन के अंदर बेसिकली जब 2% से ज़्यादा जो है वो आपका कार्बन परसेंटेज आपका रहेगा तब जो है वो 2% to 6.67%, which is the cast iron. The cast iron carbon alloys of 2.11% of carbon or the more, which is the cast iron. The typical composition, which is the 2 to 4% of the carbon, which has also the 0.5 to 3% of the silicon and less than 1% of the manganese and less than 2% of the silicon. So this substitute partials of the carbons and the promote the formations of the graphite as the carbon which is rich in the compound instead of the iron carbon. So this has applications which is used as a
Taylor's properties of the steels and the heat treatments of them. It is also used for the compositions of the crystal structures for the metallurgist in the case of the ruptures or the fatigues. So this is all about the iron carbon डायग्राम. यहाँ पे इस लेक्चर्स के अंदर जो है मैंने आपको पूरा आयन कार्बन डायग्राम जो है वो कैसे रीड हो सकता है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें इस आईसी डायग्राम से मिल सकती है, वो मैंने आपको साथ डिस्कस करने की कोशिश की है. राइट, ये लेक्चर्स जो है वो आप एक या दो बार आराम से सुनिएगा तो आपको आईसी डायग्राम के बारे में काफ़ी कुछ जो है वो पता चल जाएगा. इसका एप्लीकेशंस भी मैंने आपको साथ अभी डिस्कस किया. फिर भी अगर ये लेक्चर में किसी भी चीज़ की आपको डिफ़िकल्टी है तो फिर आप अपने क्वेश्चंस जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपको अपना एनरोलमेंट जो नंबर है वो कमेंट सेक्शंस में लिख देना है, which is counted as an online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this lecture.